सो दोस्तों ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਇਸੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਕਾਸ ਥੀਟਾ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਕੋਈ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ कि ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਆ ਐਂਗਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਆ ਬੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸਾਈਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਆਊਗਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਬੇਸ ਜਾਂ ਬੇਸ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ P ਤੇ B ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ P/B ਤੇ ਚਾਹੇ B/P ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਯਾਨੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ P/H ਜਾਂ H/P ਜਾਂ P/B ਜਾਂ B/P ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਥੀਟਾ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ P/H ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਥੀਟਾ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ P/H ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਤੇ ਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ H ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼, ਤਾਂ P/H ਜੋ ਆ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, P/H ਦਾ ਜੋ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਸ H ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਟਾ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਥੀਟਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਥੀਟਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤਾਂ P/H ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਥੀਟਾ ਸੇਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ P/H ਦਾ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪੈਂਟਾਂ ਨੇ, 3 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਵਾਂ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ P ਤੇ B ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, P ਤੇ B ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ P/B ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ B/P ਵੀ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਆ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ P ਤੇ B ਨਾਲ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ B ਤੇ H ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ B/H ਤੇ H/B। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ P ਤੇ H ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ? P/H ਤੇ H/P। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 6 ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਜਾਂ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਇਸ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ P/H ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਸਾਈਨ SINE ਸਾਈਨ। ਅਤੇ ਆਹ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆ P/H। H/P ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ
ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ, ਸਾइन कोसाइन, पता नहीं की है। एडी कोई गल नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। B/H ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ cos ਜਾਂ कोसाइन थीटा, ठीक है जी। ਤੇ H/B ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सीकेंट थीटा। ਤੇ B/P ਹੁੰਦਾ कोटेंजेंट थीटा। ਤੇ P/B ਹੁੰਦਾ टेंजेंट थीटा। इस तरह, सो इस तरह इन्हों के अपना नाम रखे हुए हैं, पर आप ये नाम इस तरह नहीं वरतते। असी इन्हों शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लिखना सौखा हो जाए। किवें जिवें B/H ਨੂੰ साइन थीटा, तो साइन आप ऐ लिखते हैं SIN लिख दें, पढ़ते इन्हूं बोलते साइन ही है, तो इस तरह साइन थीटा बोल दें। कोसीकेंट नूं असी COSEC कोसैक लिख दें, तो बोलते कोसीकेंट है, लिखते इस तरह है। कोसाइन नूं असी कॉज लिख दें थीटा। H/B नूं सीकेंट नूं असी SEC सीकेंट थीटा लिख दें। टेंजेंट नूं असी टैन थीटा लिख दें, तो कोटेंजेंट नूं असी कॉट थीटा लिख दें। ठीक है जी गल। फिर एक गल जी मैं लगता जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुती पढ़ी हुई है पहला, तो उन्होंने पता भी होना कि इन्हों याद रखने का भी एक तरीका होंदा है। ठीक है, सरकारी स्कूलों साढ़े जिवें ਜਿਹੇ स्कूलों असीं पढ़े हैं, उन्होंने स्कूलों ऐ सिखाया सानूं याद रखना। अंग्रेजी वालों भी कुछ सिखाते हैं इस तरह का, अंग्रेजी वाला मैंने याद नहीं गा, वो थोनों आपने आप पता होना। वो ऐ हुंदा सी भी SCT, इनू ऐ याद रखते हैं सोना चांदी तोले, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। कई ऐ लिखते हैं पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये एवें याद रखने का तरीका आ, ठीक है ना। कई बच्चे इदा ही केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल याद रखी बैठे आ, वो पीरियड वाइज कोई गाने बनाए हुए बच्चों ने। सो ये सारे का अपना अपना तरीका आ, पर यह वाला इन्ना मशहूर है भी ये लगभग सारे अध्यापक भी इदा ही बच्चों को याद कराते हैं। तो एस का मतलब की है साइन, सी का मतलब कॉज, टी का मतलब टैन। आ याद रखियो बस। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉज, टी का मतलब टैन। साइन P/H, कॉज B/H, टैन P/B। देखो साइन P/H, कॉज B/H, तो टैन P/B। सो आ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ टी रेशो, ये सानू इन्हां तो याद हो जाते हैं। ठीक है, उस तो बाद जो आ इन्हां दे फिर देख लेने इन्हां दे पुट्ठा, जिवें P/H का पुट्ठा रेसिप्रोकल करता, H/P तो वो साइन का बन जाता कोसिकेंट, कॉज का बन जाता सीकेंट, तो टैन का बन जाता कोटेंजेंट या कॉट थीटा बन जाता है। इस तरह आप इन्हों टी रेशो नूं नाम देता। हुण पहला आप नाम नहीं सकते दिता, पहले आप वैसे ही गल कर रहे थे, कोई दो साइड लै लो, कोई भी एक्टिविटी करते हुए, पर हुण आप इन्हों नाम देता। तो आ थीटा तो डिपेंड करेगी इन्हों की वैल्यू की आएगी। ठीक है जी। सो थोड़ा जिहा होर इन्हूं लिखिए आप कि किवें इहनूं होर याद रखांगे। आप एक गल जिहड़ी आपां इत्थों सीखी हुण इन्हां 'च की आपस च रिलेशन देखो भी जिहड़ा साइन थीटा आ वो कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल आ, पुट्ठा आ। देखो क्योंकि साइन P/H होंदा, ये H/P होंदा। या फिर इन्हूं ऐ भी कह सकते हैं भी कोसिकेंट थीटा जिहड़ा आ वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल आ। इस तरह जिवें मर्जी कह लो, आ भी गल ठीक है, आ भी गल ठीक है। सो इन्हां दी जोड़ियां 'च याद रखो। पहलां तां इन्हां नूं तीनां नूं इत्थों जिहड़ा आपां हुण ही कर रहे सोना चांदी तोले, तो साइन कॉज टैन याद रखो, साइन कॉज टैन ये काफ़ी होंदा है। साइन कॉज टैन याद रखो। इन्हां सारिਆਂ ਦੇ पुट्ठे जिहड़े ने रेसिप्रोकल ने उन्हां नूं जोड़ियां 'च याद रखो। जो साइन दे नाल याद रखो, साइन का पुट्ठा कौन है? कोसिकेंट। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट। कॉज का रेसिप्रोकल कौन है? कॉज का रेसिप्रोकल की है? सीकेंट। तो टैन का कॉट है। इस तरह इन्हां दी इस तरह पेयरिंग कर लो, जिवें साइन ते कोसिकेंट एक दूजे के रेसिप्रोकल ने। आप इन्हूं देखांगे एवें ना भी लिखो। तो कॉज दे नाल कौन है? सीकेंट। सीकेंट SEC लिख लो सिर्फ। तो टैन दे नाल कौन आ? कॉट। ठीक है जी। इन्हां दोनों का रिलेशन जिहड़ा आ वो P ते H नाल आ बस।
ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਸਾइन थीटा ਕੀ ਹੁੰਦਾ P/H, ਪਰ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਟੈਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਟੈਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟੈਨ ਕਿੰਨਾ, ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਦੱਸ ਨਾ, ਟੈਨ 30 ਡਿਗਰੀ, ਟੈਨ 45 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਣੂਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਂਗਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨ ਸਾइन ਕੌਸ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੌਸ ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਬੀ ਤੇ ਐਚ ਨਾਲ ਆ, ਬੇਸ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਆ। ਟੈਨ ਤੇ ਕੌਟ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਦੇ ਆ। ਪੀ ਤੇ ਐਚ ਤੋਂ ਸਾइन ਤੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਬੀ ਤੇ ਐਚ ਤੋਂ ਕੌਸ ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਆ B/H ਕਰਕੇ, H/B ਕਰਕੇ, P/B, B/P ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾइन ਕੌਸ ਟੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾइन ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਟਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਹੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਟੈਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾइन 30 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 1/2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾइन 30 ਡਿਗਰੀ 1/2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ साइन 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ। साइन 30 ਡਿਗਰੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ साइन थीटा ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਟਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਦੇਖੋ साइन 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ 1/2 ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ 30 ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 30 ਮੰਨ ਲਓ। 30 ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ 90 ਆ ਤਾਂ ਇਹ 60 ਹੋ ਗਿਆ, 30 ਹੋ ਗਿਆ। ਆ 30 ਡਿਗਰੀ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਆ। साइन 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰੋਪ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਡਰੋਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਟਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ ਐਂਗਲ, ਤਾਂ ਇਹ 1/2 ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਰ ਲਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਲੈਂਥ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ साइन 30 ਡਿਗਰੀ 1/2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ P ਹੈ, ਜੇ ਆ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਹ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ साइन 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਟਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ 1/2 ਹੋਊਗਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਐਂਗਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ साइन थीटा P/H, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਥੀਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਵੇ tan 45 ਡਿਗਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। tan 45 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ
पहली गल तो टैन हुंदा की है, टैन थीटा पता तो होवे बंदे नूं की है। टैन थीटा हुणी मैं लिखाया परपेंडिकुलर बटा बेस हुंदा ना, तो इत्थे टैन 45 डिग्री दे एक होने का की मतलब है? इसदा मतलब है कि जे मैं 45 डिग्री का कोई एंगल बना लवां, जिवें इस तरह ट्रायंगल ट्रुंगल की गल बाਅਦ आती, पहले 45 डिग्री बनाओ, पहले एंगल आ, एंगल तो टी रेशो निकलता ना 45 डिग्री, जिमें आ बनेगा लगभग 45 डिग्री, आ 45 डिग्री का एंगल बन गया। इनू जिन्नी मर्जी दूर लै जाओ, कोई चक्कर नहीं, इनू भी लै जाओ। पर हुण गल करनी है तो फिर तुहानूं परपेंडिकुलर किते तां ड्रॉप करना पैना आ। आपां देखी सी एक्टिविटी। सो जे मैं इत्थे किते ड्रॉप कर लवां परपेंडिकुलर, इत्थे मान लो आ परपेंडिकुलर हो गया, तो टैन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस, बेस भी आ बेस हो गया। तो ये की मतलब आ टैन 45 डिग्री एक होने का मतलब की है, जो 45 डिग्री एंगल बनाओगे तो परपेंडिकुलर बटा बेस करके एक आएगा, मतलब फिर परपेंडिकुलर ते बेस दोनों बिल्कुल बिल्कुल बराबर आएंगे, बिल्कुल बराबर आएंगे। आ देखो हुण आप पी ते ये थोड़ा 45 तो ज़्यादा बन गया एंगल, मैनूं तो देखने लग रहा, थोनों भी शायद लग रहा होना भी आ थोड़ा वड्डी बन गई ना, पर 45 डिग्री जो तुसीं बनाओगे ना, कापी ते बना के देख लियो, तो पी ते बी बिल्कुल बराबर ही आएंगे, इन्हां च कोई वो नहीं होएगा फर्क। तो जे तुसीं पी इत्थे बनाओगे तो बी उन्ना ही आएगा जिन्ना पी होएगा, जिथे मर्जी ड्रॉप कर लो, पी तो बी हमेशा बराबर आएंगे, इसलिए टैन 45 डिग्री एक हुंदा आ। तो जो तुसीं कॉट कर लो, कॉट की हुंदा बी बटा पी, तो जब दोनों बराबर ही ने तो बी बटा पी करके भी तो उन्ना ही आएगा, इसलिए कॉट 45 डिग्री भी एक ही हुंदा आ। सो इस गल नूं ध्यान नाल समझो। इसलिए जिवें साइन 30 डिग्री 1/2 हुंदा ना, तो कॉसिकेंट 30 डिग्री की होएगा, वो उल्टा हुंदा ना, तो वो 2/1 हो जाएगा। इस तरह असी टी रेशोज़ की वैल्यूज़ नूं समझते हाँ कि किसी टी रेशो की किसी एंगल ते वैल्यू का मतलब की है, वह मतलब आया, इस बारे आ जानकारी है सानू, ठीक है गल। सो हुण इहदा फायदा की है, जे मैनू वैल्यू पहले ही पता होवे तो वह फायदा की है? वह फायदा यह है कि मान लो जे मैनू किसी ने कोई ट्रायंगल दी हुई है इस तरह, तो कोई कह रहा भी आ 30 डिग्री है, ठीक है, आ 30 डिग्री है, तो मैनू कोई कह रहा भी आ जिहड़ा आ लंबाई है इत्थों तो इत्थे तक ये 50 सेंटीमीटर है, बस आ पता मैंने 50 सेंटीमीटर है। तो कोई मैंने पूछे भी तुसीं दसो फिर आ कितनी होएगी, आ लंबाई कितनी होएगी, तो असी जे सानू आ एंगल पता आ, तो इस एंगल के उपर सारे टी रेशो पता ने, तो किसी भी एक साइड तो बाद बाकी 2 साइड अपने आप पता कर सकते हो तुसीं। आप देख लेना कि पता करते हैं। देखो इस ट्रायंगल में हुण आ इहनूं परपेंडिकुलर कहांगे, आपां इहनूं कहांगे बेस, इहनूं हाइपोटेन्यूज। सो आ पता करना, पी पहला पता करते हैं। परपेंडिकुलर नूं लिखो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज कितना है 50 सेंटीमीटर बराबर है परपेंडिकुलर बटा बेस किहदे बराबर हुंदा है, परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज किहदे बराबर हुंदा है, साइन थीटा दे ना, साइन थीटा, थीटा थीटा केड़ा थीटा आ रहा, थीटा थीटा केड़ा 30 डिग्री आ रहा, 30 डिग्री। हुण साइन 30 डिग्री की वैल्यू तुहानूं पता ही है। सो तुसीं की करोगे, पी बराबर है 50 सेंटीमीटर तो गुणा करोगे, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होंदी है, ये चार्ट तो मिल जाएगी थोनों, या याद होएगी आपां नूं, या मैं तुहानूं दसूँगा कि याद रखनी है। इहनूं कट दो, कितना आया 25 सेंटीमीटर आ गया। सो थोनों पता लग गया इत्थों ही कि ਇਹਦੀ कितनी लंबाई होएगी। हुण आ पता लग गया, आ भी पता लग जूगा। वो किवें पता लगूगा, वो टैन नूं वरत लियो या B/H वरत लियो, कॉज वरत लियो, कॉज 30 डिग्री वैल्यू भी पता कर लोगे। सो इन्हां दी वैल्यूज़ की होंदियां ने, साइन 30 डिग्री, कॉज 30 डिग्री, टैन 45, टैन 60, साइन 60, कॉज 60। जे इन्हां दी वैल्यूज़ पता होण तां आपां इह काम कर सकते हैं। हुण हुंदा की है, आम करके तो अपने जे आप देखिए कि आम करके जो वैल्यूज़ होंगे एंगल होंगे ने, हुण मैं किसी सफेदे का देखना है कि कितना उच्चा आ, इत्थों मैं वो ला के है ना एक सैक्सटेंट एक आंदा आ जिहड़ा इंस्ट्रूमेंट, वो ला के मैं देखा भी इन्ना एंगल आ, मैं देखा एंगल आया 32 डिग्री, मैं कहा ओहो मेरी किताब 'च तो 32 डिग्री है ही नहीं। सो उही गल है ना, आपां नूं सवाल समझाउण दे लई किताबां 'च जो सवाल दिते हुंदे ने उत्थे वो सिर्फ खास कुछ एंगल वरते हुंदे ने, 0,
30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री तो 90 डिग्री। पर जरूरी नहीं है कि थोड़ा असली जिंदगी के भी आही एंगल मिलणगे, नहीं। असली जिंदगी 22 डिग्री 22.5 डिग्री 23 डिग्री 34 डिग्री 33 डिग्री 42 41 49 52 52 डिग्री कुछ भी हो सकता है। सो उत्थे सानू या तो थोड़ा वो चार्ट मिल जाता है, एक टेबल मिल जाता है, उत्थों पता लग जाती है, नहीं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर मिल जाता है, उत्थों पता लग जू, नहीं तो थोड़ा एक्टिविटी दसी हुई है उदा पता कर लियो, एंगल ड्रॉ कर लो 52 डिग्री P/H कर दो, साइन थीटा आ गया, साइन 52 डिग्री आ गया। सो तुम पता कर सकते हो। पर हुण मैं गल करदा क्योंकि आप जे 10वीं क्लास के बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हो तो उन्होंने लिए ज़्यादा जरूरी है कि उन्होंने वैल्यूज़ याद किवें रहणगियां। सो उन्होंने किहड़ी वैल्यू की लोड़ पैंदी है मैं दस दिना। ये तो सवाल कई तरह के हो सकते हैं, वो अगले वीडियोज़ भी देखांगे। तो फिलहाल आप देखते हैं कि वैल्यूज़ किहड़ी एक तो 0 डिग्री बहुत वरती जाती है वैल्यू सवालों में, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री तो 90 डिग्री। ठीक है, इन्हों याद रखने का तरीका, इन्हों की वैल्यूज़ याद रखने का तरीका या इन्हों का टेबल जो होंगे है। वैसे तो मैं कभी भी किसी चीज़ का कोटा मारन बारे नहीं कहता भी कोटा मारो, पर कुछ चीज़ां याद रहन तो थोड़ा सौखा रहता अपने लिए। सो आ वाले वैल्यूज़ के उपर आप याद रख सकते हैं कि की आंसर आएगा किसी भी टी रेशो का। इधर आप कह दें थीटा, थीटा 0 30 45 60 90। आप सिर्फ साइन ते कॉस की वैल्यू याद रखते हैं बस, बाकी नहीं याद रखते। वो टेबल ज़्यादा काफ़ी वड्डा बनाया होंदा किताब च, कोई याद रखने की लोड़ नहीं, ये अपने आप ही हो जाएगा प्रैक्टिस नाल। सो आप सिर्फ याद रखेंगे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होएगी जे थीटा इन्ना होया तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होएगी जे थीटा इन्ना होया तो। ये एक सिंपल जहा तरीका वा। ठीक है, हुण आ तरीका कोई बहुत बड़ी कोई विज्ञानक कार्रवाई नहीं है, ये बस एक तरीका आ, बस ये की वैल्यूज़ याद रखनिया बार बार लिखनिया सौखियां हो जानिया, होर कुछ भी नहीं। 0 आप की लिखते हैं पहला देखो 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज़ चाहिए ने, तो 0 नंबर तो शुरू करीदा आप 0 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 0 तो लेके 4 तक पहला नंबर लिखो, फिर जो 4 है वो सारिਆਂ डिवाइड कर दो। पहला 0 तो 4 तक नंबर, फिर 4 सारिਆਂ बटा कर दो, फिर सारिਆਂ का रूट ले लो, रूट स्केयर रूट जिन्होंने कहने आप, तो 0/4 का 0 ही होया, ओदा रूट फिर 0 होया। 1/4 का रूट की होगा 1 का 1 1/4 का 2 1/2 तो आ जाएगा 1/2। 2/4 पहले इन्हू कट दो, 2 1 2 2 दूनी 4 1/2 रूट के अंदर 1 का 1 बाहर आ जाएगा, 2 रूट के अंदर आ जाएगा 1/√2, 3 का रूट ऊपर रहेगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 4 ना 4 कटिया गया 1 आ गया, लो जी 1 आ गया। कॉज ने किया पुट्ठा कर दो बस, आ साइन का बना लेना चार्ट, बाकी पुट्ठा कर दो। जिवें आ 1 नूं इधर लिया के लिख दो, √3/2 इत्थे लिख दो, 1/√2 फिर इत्थे ही आ जाएगा वापस। सो आ देखो साइन 45 डिग्री भी नहीं है, कॉस 45 डिग्री भी नहीं होंगे यार। ठीक, तो 1/2 इधर आ जाएगा, तो 0 इधर आ जाएगा बस। सो आ अपना चार्ट बन जाता है, इन्ना कि थोड़ा याद रहे तो काफ़ी है। यही वैल्यूज़ तो तुसी फिर कोई मर्जी टी रेशो होवे उहदी वैल्यू पता कर सकते हो, इन्हां दा आपस में जो रिलेशन होंदा उहदे करके। पर उहदे लई आपां एक अगली वीडियो च गल करांगे, थोड़ा सवाल किवें हल करने आ, तुहाडी फिर किताब बारे गल करांगे, किताब दे विच एक्सरसाइज हल करने बारे गल करांगे। पर हुण मैं सिर्फ ये दस रहा कि इहदा मतलब की है। आ जिवें देखो साइन 30 डिग्री 1/2 हुंदा है, साइन 60 डिग्री इन्ना हुंदा है, कॉस 30 डिग्री इन्ना हुंदा है। हुण इत्थों तुहानूं वैल्यू पता लग जानी साइन ते कॉस दी किन्नी हुंदी है। पर मैं थोनों ये दसना चाहना कि वैल्यूज़ पता तो लग गई, पर फिर भी तुसी एक्टिविटी सीखी हुई गल भुलना नहीं है। जिमें कि इत्थे आपां देखते हैं गल, जे मैं गल करा एक तो पहला इन्हों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके देख लो कैलकुलेटर नाल, कोई भी वैल्यू 1 तो उपर नहीं जानी कभी भी, तो 1 तो उपर क्यों जाए सोचो। साइन थीटा हुंदा की है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज हुंदा ना, तो कॉस थीटा की हुंदा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हुंदा है। तो तुहानूं पता है कोई भी ट्रायंगल होवे जिन्नी मर्जी वड्डी आ जिन्नी मर्जी छोटी, उहदा जिन्ना मर्जी थीटा होवे, सब तो वड्डी वाली साइड हाइपोटेन्यूज हुंदी है, तो सब तो वड्डी वाली तो थल्ले लिखी डिनोमीनेटर च तुसीं,
तो मतलब न्यूमरेटर कभी डिनोमीनेटर तो वड्डा तो हो नहीं सकता, इसलिए नीचे वाला एच जिहड़ा है सब तो वड्डा ही रहेगा, इसलिए आंसर हमेशा एक तो छोटा रहेगा, एक तो छोटा रहेगा। पर इत्थे एक भी आया है एक जगह इत्थे। हुण इहदा की मतलब बनिया, इहदा अपनी एक्टिविटी नाल की मतलब बनिया, आपां इह समझण दी कोशिश करते हैं। सब तो ज़्यादा जरूरी गल यही समझना है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू एक किवें आ गई, जब मतलब पी तो एच बराबर तो हो नहीं सकते, आपां नूं ऐ लगदा ना पी तो एच बराबर तो नहीं हो सकते, पर साइन 90 डिग्री हुंदा है पी तो एच बराबर किवें। देखो लो जी, हुण साइन 90 डिग्री बनाना, इस तो पहले मैं कहना साइन 30 डिग्री बारे सोचो। जो तुसीं देखते हो आ ट्रायंगल बनाने हो, ध्यान नाल सोचो। हुण 30 डिग्री बना लवां पहला मैं, हुण तुहानूं पता साइन 30 डिग्री जे बनाया मैं, तो जिथों मर्जी परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, अपनी मर्जी है, आप इत्थों ड्रॉप कर दिंदे आ पी है तो आ एच है। पी तो एच का रेशो ही साइन 30 डिग्री है, जिहड़ा कि 1/2 है ना, पी बटा एच 30 डिग्री ते। हुण तुसीं एंगल नूं वधाउण दी कोशिश करो तो उहदे नाल देखो की फर्क पैंदा है। जे तुसीं एंगल नूं वधाने हो, जिवें कि आ एंगल आ, इहनूं थोड़ा वधाने आपां इस तरह, ठीक है। जे एंगल नूं वधावांगे तां की होएगा, आपां देखो परपेंडिकुलर जिथे मर्जी ड्रॉप कर सकते, अपनी मर्जी है। हुण इत्थे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा काफ़ी उपर चल जाएगा, थोड़ा होर किता होर आ बोर्ड तो बाहर निकल जाना मेरे। तो मैं थोड़ा एक्टिविटी समझाया भी इनू ड्रॉप जिथे मर्जी कर लो, आंसर तो सेम ही आता है। सो मैं इनू नेड़े नेड़े लैके आऊँगा ताकि थोड़ा समझा सका, ताकि आ पी बाहर ना निकल जाए, उपरों बाहर ना निकल जाए, है ना। मैंने लेंटर पाड़ के बाहर हो जाना, नहीं तो आप इनू इधर करते हैं, आप एंगल वधाने थोड़ा ऐ कर दें। हुण परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आ रहा तो आ रहा हाइपोटेन्यूज। देखो हुण पी तो एच दे विच थोड़ा फर्क घट गया ना, देखो इत्थे पी छोटा सी एच नालों काफ़ी छोटा सी, इत्थे पी एच नालों थोड़ा ही छोटा रह गया। तो इस तरह करते करते जे मैं होर वधा देवां एंगल, हुण फिर किते ना किते ड्रॉप करना पैना, फिर इत्थे नालों मैं इत्थे थोड़ा नेड़े ड्रॉप कर लेना, इत्थे ड्रॉप कर लेना। हुण आ पी है तो आ एच है, देखो ठीक है ना। एंगल वधदा जा रहा तो पी तो एच में फर्क घटदा जा रहा, देखो इत्थे पी तो एच फर्क घट गया, इत्थे पी तो एच होर घट गया। जो एंगल करते 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 99 डिग्री हो जाएगा, जो 99 डिग्री समझते हो, सोच के देखो 99 डिग्री का मतलब है आ 90 आ हुंदा है पूरा सीधा, है ना, आ हुंदा 90, तो 90 तो थोड़ा जिहा घट बस, आ मान लो 99 डिग्री है। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तुसीं कितों भी ऐ होएगा ना, आ परपेंडिकुलर आ 90 डिग्री का एंगल, तो इत्थों लैके आ एच होएगी। हुण देखो पी तो एच ने, हुण जो आ 99 डिग्री हो गया ना, आ वाला एंगल 99 डिग्री किहड़ा एंगल है भला, आ वाला एंगल, आ वाला इधरले पासे जिहड़ा बनया, जिहड़ा आ वाली ते आ वाली नाल बन रहा, आ वाला एंगल आ वाला। हुण जिवें 90 होएगा, आ पी तो एच ने एक दूजे विच मर्ज हो जाना, पी तो एच एक दूजे के उपर आ जाएंगे, तो पी तो एच की वैल्यू लगभग बराबर हो जाएगी, इसलिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होंदी है। तो जो पी तो एच लगभग बराबर हो जाएंगे तो बेस कितना हो जाएगा, देखो बेस जो पी तो एच जिवें आ देखो बेस भी घटदा जा रहा है ना, देखो बेस पहला इन्ना सीगा, वो घट गया, इन्ना घट गया, ऐ करते करते जो पी तो एच जो 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो ऊपर ही आ जाएगा, वो बेस खत्म, बेस 0। तो जे बेस 0 होएगा तो कॉस 90 डिग्री कितना बनेगा, 0 ही तो बनेगा, क्योंकि बेस श्रिंक होकर खत्म हो गया। जिवें आ देखो कॉस 90 डिग्री 0 होंदा है, साइन 90 डिग्री 1 होंदा है। इस तरह तुसीं हर वैल्यू बारे सोच सकते हो, बना के अपनी एक्टिविटी के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो। सब कुछ इस तरह होंदा है, तां ही इस तरह वरत्या जांदा है, ये कोई तुक्का नहीं गा, ठीक है। ये कोई थोनू मतलब जिवें बच्चे कहते ना ट्रिग्नोमैट्री सानू तंग करने लिए बनाई आ, साडी जिंदगी च कदे काम आंदी नहीं, सानू मास्टर ने पता नहीं क्यों पढ़ाई आ, वो बई काम आंदी है तां ही पढ़ाई आ। हुण तुसीं इहनूं जे किते आलू लैण जा रहे हो, गोभी लैण जा रहे हो, उत्थे साइन थीटा वरतना चाहते हो, तो हुण मैं तुहाडे नाल तां की कर सकदा वां। मतलब ट्रिग्नोमैट्री का फायदा है, बहुत फायदा है। तो जिहड़े फोन तुसीं सारा दिन गेमां खेडदे हो ना, चलाने हो, ये सारे एवें नहीं बने गए, मैथमैटिक्स नाल ही बने हैं। मैथमैटिक्स के बिना इहदे बारे कल्पना भी नहीं कर सकते, तुसीं सोच भी नहीं सकते।
ਸੋ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੇਬ ਗਿਰ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਮਰਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵਧਾਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖੋ, ਸਮਝੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਰਿੰਗ ਨਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਉਹ 'ਚ ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਰਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਹੀ ਉਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ 'ਚ। ਸਮਝੋ, ਸਮਝ ਲਵੋ। ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਸਾਇੰਸ 60 ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਇੰਸ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਮੇਰਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਗੇ 1-2 ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਫਿਰ ਮੈਂ 11ਵੀਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।